Have you ever squeezed a lemon on your tongue and your mouth goes, mm? Have you ever tasted a sour curd? Have you ever experienced the sourness of your apples? So where does this sourness comes from? This super strong sourness comes from a very special group of substances, and that's known as acid. So hello 10th graders, today we are going to begin with a new topic of chemistry, that is acids. So acids are basically the chemical substances which give sour taste. So that sourness, you may ask, you must be wondering, ma'am, where does this sourness comes from? ये sourness आ क्यों रही है, and why acids are responsible for giving that sour taste? So there is a special ion which is present in the acids, that is hydrogen ions, which is responsible for give the sourness. So whenever acids are dissolved in water, they produce lot of hydrogen ions, right? And these hydrogen ions are responsible to give the sourness in your apples, in your curd, in your tamarind, in all kind of citrus fruits. And acids also can be indicated. We have learned the indicators. Acids can Acids can easily be known using whether a given chemical substance is an acid or not. या बहुत easily judge कर सकते हो by just touching it with a litmus paper, and litmus paper always turns blue to red. Now, can we consume, the next question comes, can we consume all kind of acids, ma'am? Absolutely not. There are many substances in our everyday life that contains acid, but all acids are not consumable. So whether the acid is consumable or not, we have categorized the acids into two major types. Organic acids, which are found in the naturally occurring substances. For example, apples, all kind of citrus fruits, lemons, your sour milk. And mineral acids is the second category of acids which are not at all consumable, and they are highly corrosive, right? It produces lot of hydrogen ions and it becomes highly corrosive and completely unfit for consumption. Now we'll study each type of acids one by one to get more details. So moving ahead, we are starting with the organic acids. अब organic acids में here I have provided you a list. So acetic acid is also known as ethanoic acid. मैं थोड़े थोड़े से आप लोगों को फॉर्मूलेज रिवाइज करवाते चलूंगी, बिकॉज 10th ग्रेड में जहां जहां नीड है वहां वहां फॉर्मूलेज किए जा सकते हैं. दैट इज CH3COOH. दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड. सबके नहीं करने हैं, बट कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं वो हम जरूर करेंगे. एंड व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड? विनेगर. जो सिरका आप यूज करते हैं, राइट, जितने भी होटेलियर्स नूडल्स प्रिपेयर करते हैं जिसमें sourness देनी होती है, so that can be also be given. Vinegar, onions we eat, so that is nothing but dilute form of acetic acid. Now citric acid is present in all kind of citrus fruits like lemons and the whole family of oranges. Lactic acid is present in curd, children, and curd is also known as sour milk. Now how does the milk turns into curd? So it is the multiplication of lactobacillus bacteria into the milk, which starts forming lactic acid, and lactic acid turns the milk sour, and milk turns into curd. So curd is having which acid into it? लैक्टिक एसिड. अब चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे सिट्रिक एसिड हो, चाहे लैक्टिक एसिड हो, इन सभी एसिड्स के पास क्या रहते हैं बच्चा? इन सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन आयंस रहते हैं, और हाइड्रोजन आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू गिव द सॉरनेस in the substance, right? Tartaric acid is present in tamarind. Tamarind is nothing but imli. And unripe grapes. So unripe grapes और tamarind में क्या present रहता है? Tartaric acid. Oxalic acid is present in tomatoes. So tomatoes में भी little bit of sourness होती है, right? Some have more sourness. तो अब आप इसको scientifically समझेंगे, अब आप इसको अपनी chemistry को आप अपनी day to day life से relate करेंगे. So कोई भी substance which is sour in taste, right? That is having, you should be knowing now, that is having hydrogen ions, and hydrogen ions are responsible to give that sourness in the given substance. Formic acid. फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मीथेनोइक एसिड. आगे चल के आप ये भी पढ़ेंगे. तो इसका फॉर्मूला होता है HCOOH. ठीक है. एंड
These two, the name is same. Formic is a common name. Methanoic is a IUPAC name. So here, children, formic acid is present in ant sting or nettle leaf sting. Right, children? So ant sting, if sometimes the ant sting on our body somehow, so which acid has got injected into our body? That is formic acid. That may cause some burns over our body and boilers, and that is due to the injection of methanoic acid or formic acid. These are nettle leaf stings, children, and these also injects the formic acid into a person's body coming in contact with. So ये सारे के सारे acids में क्या common है? ये सब acids के पास hydrogen ions, but they have limited amount of hydrogen ions. बहुत सारे नहीं है, थोड़े ही हैं. अगर ये बहुत सारे हो जाएंगे तो ये consumable नहीं रहेगा. तो जितने भी organic acids होते हैं उनमें hydrogen ions होते हैं, but comparatively कम होते हैं. इतने होते हैं कि वो sourness दे देते हैं, but इतने नहीं होते कि वो corrosive हो जाए, and it becomes unfit for consumption. Now moving ahead towards the second category of acids, that is known as mineral acids, children. Right, when we talk about mineral acids, there are three mineral acids and which are strong acids. Like hydrochloric acid we have HCl, sulfuric acid we have H2SO4, nitric acid we have HNO3. When we talk about weak acids, yes, these weak acids are organic acids. अभी हमने पढ़े हैं acetic acid, formic acid, citric acid, tartaric acid, carbonic acid. आप बोल सकते हो मैम कार्बोनिक एसिड अभी तक आपने नहीं बताया. अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. When CO2 combines with water, it forms a weak acid which is known as carbonic acid, and this is found in the drinks which most of the youngsters and teenagers like. Those are cold drinks, right? Any sort of carbonated drink, fizzy drinks, इन सब में क्या present रहता है? जो fizziness आती है, that effervescence it produces, it is due to the carbonic acid, right, children? And strong acids, that is mineral acids, are unfit to drink. Even their dilute form is extremely harmful to drink, children. तो ये बात आप ध्यान रखेंगे. ये acids आपको केमिस्ट्री लैब में अपने स्कूल्स की मिल सकते हैं. You will find them, but please handle it with caution because these are extremely dangerous. अब इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करो कि डेंजरस क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पास कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस है. एंड वी नो दैट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 केमिस्ट्री दैट हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन molecule, and hydrogen is highly inflammable, right? So it produces lot of amount of heat. So whenever there is any reaction takes place with any sort of mineral acid, it is highly exothermic, so which makes it unfit for drinking purpose. Now moving ahead to understand the chemical properties of acids. Okay, before chemical properties, we are going to begin with the talk. We are going to understand concentrated and dilute acid. ठीक है, हम सबसे पहले concentrated और dilute समझेंगे. Concentrated और dilute का क्या मतलब है? It's simple. अगर आप इसको layman language की terms, layman language की तरह समझो, so concentrated acid मतलब pure acid. इसमें बहुत minimal amount या ना के बराबर कोई water होगा. It will not be having any water or almost minimal possible water into it, right? And it has lot of amount of hydrogen ion. But when you're talking of dilute acid, children, it is more of water and less of acid particles, less of iron, right? So dilute में आपने क्या किया? Water add कर दिया और आपने acid particles, that means जो ions हैं उनका quantity क्या कर दिया? Comparatively कम कर दिया. अब concentrated acid में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ions हैं, कम वाटर है. डाइल्यूट में आप क्या करते हो कि बहुत सारा वाटर हो जाता है और कम आयंस रह जाते हैं. सो दोनों ही फॉर्म, अगर वो मिनरल एसिड्स की हैं, सो दोनों ही फॉर्म अनफिट फॉर कंजम्पशन है, अनफिट फॉर पर्सनल यूज है. तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें कभी भी किसी भी मिनरल एसिड के फॉर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, right? Because that can prove to be very harmful to you. Now, what is the right way to dilute an acid? अब अगर मुझे एक concentrated acid को dilute करना है, थोड़ा सा दिमाग हम यहाँ पे अपना खुद लगाएंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो अभी हम
समझते आ रहे हैं, हमें डाइल्यूट करना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, ठीक है। तो अब हम क्या करें, उस एसिड को लें और उसमें वाटर ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, सोचो, यू हैव लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड, आप वाटर ऐड कर रहे हो तो वो आयंस में ब्रेक होगा। अब वो आयंस में ब्रेक होगा, वो एट अ टाइम, एक ही टाइम में वो बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस बना देगा, जो लॉट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। अब वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, वो हाइड्रोजन गैस inflammable है, so it start catching fire from the surrounding air itself, so it becomes highly exothermic and it can lead to an explosion as well, right? So उससे एक explosion भी हो सकता है। so हमें कभी भी एसिड में डायरेक्ट वाटर नहीं डालना। so here is a caution, हमें कभी भी एसिड में डायरेक्ट वाटर नहीं डालना, क्योंकि ऐसा करने से एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट होगा, जिसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट एक एक्सप्लोजन के इक्विवेलेंट होगी। नाउ व्हाट इज द राइट वे, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम एक एसिड में वाटर डाल रहे हैं, तो व्हाट इज द राइट वे दैट we are adding water to acid or acid to water. So the right way to dilute an acid, to do a stepwise process, right? We are going to dilute an acid into two major steps. First, you are going to take water into a container, and then you are going to add the acid dropwise as shown in figure 1, children. So आप क्या करेंगे, आप acid को dropwise add करेंगे, राइट अब ड्रॉप वाइज ऐड करने से क्या होगा, जो थोड़ा सा एसिड पार्टिकल गए हैं, एसिड गया है, वो थोड़े से आयंस प्रोड्यूस करेगा और उससे थोड़ी सी हीट होगी, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू इट, देन यू आर गोइंग टू मिक्स इट, right? You are going to mix it thoroughly because that heat get dissipated into the environment. And slowly you're going to repeat the process. You're going to add the acid dropwise, then you're going to mix it thoroughly, and then you're going to repeat the process, right? By repeating it, आपको for example 90 ml water में 10 ml एसिड को डिसॉल्व करना है और एक डाइल्यूट एसिड रेडी करना है, तो वो 10 ml आप कैसे ऐड करेंगे, by adding the acid into water dropwise and then mixing it thoroughly, and you have to repeat the process. तो आप एसिड को क्या कर रहे हो, ड्रॉपवाइज ऐड कर रहे हो, फिर आप उसको thoroughly मिक्स करोगे और आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे till your whole acid get dissolved. So this is how you are going to prepare a dilute acid for yourself. So remember, we can never add water to an acid, but we can add acid to water, that to dropwise. तो दोनों ही काम एक साथ नहीं करने ना, water हमें एक साथ एसिड में ऐड करना है, nor we need to add acid whole into the water, because it will lead to an highly exothermic reaction and that brings a little explosion. So what is the right way? Adding acid to water dropwise and mixing it thoroughly to repeat the process. So this is how we are ready with our dilute acid. Now we are going to understand the properties of acid one by one, right? So we already have understood that acids have sour taste due to the presence of hydrogen ions. Acids always turns blue litmus to red, and acids can conduct electricity when dissolved in water. राइट, नॉट इन द ड्राई फॉर्म। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जब भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस आ जाएंगे एंड आयंस आर रिक्वायर्ड टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। सो इसीलिए हम एसिड्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो भी सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सो एसिड्स क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। सो दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब ये एक जनरल इक्वेशन है, आप इसमें कोई भी मेटल और कोई भी एसिड के साथ कर सकते हैं, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन इन माय एक्सप्लेनेशन, बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग चिल्ड्रन, जब भी एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सो मेटल क्या बना देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन बनाएगा। चैप्टर 1 से बेसिक्स हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं। इट इज द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स, रीअरेंजमेंट
will takes place. तो जब old chemical bonds break हो रहे हैं होते हैं तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, आयंस फॉर्म होते हैं. सो एसिड भी टर्न कर जाएगा, it is going to split into ions, dissociate into ions, hence forming a corresponding salt, and hydrogen gas is always evolved. Right, जब भी आप किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो हमेशा कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो यहाँ पे जिंक मेटल है, कभी भी आपको रिएक्शन को रटना नहीं है. कितने रिएक्शन याद कर सकते हैं, बहुत सारे नहीं याद कर सकते. तो हमें अपना लॉजिक लगाना है. Zn ब्रेक करेंगे बॉन्ड तो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 स्प्लिट कर जाएगा H+ और SO4 2- में. अब रीअरेंजमेंट हो रहा है भाई, rearrangement is taking place. So Zn2 plus SO4 2-, it forms ZnSO4, a corresponding salt. And which gas? Hydrogen ions हमेशा कैसे convert हो जाते हैं? They do the covalent bonding and they start forming hydrogen gas. So concept is really important because rote learning can never help us in addressing any sort of competency based question. अब जरूरी नहीं है कि वो आपको रिएक्शन यही एज इट इज उठा के एग्जाम में दे दे, वो आपको कोई भी मेटल दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि सोडियम मेटल को रिएक्ट करके बताओ HCl के साथ, तो यहाँ पे हमने मेटल भी चेंज कर दिया और यहाँ पर हमने अपना एसिड भी चेंज कर दिया. तो अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम स्प्लिट करेगा सोडियम आयन, दैट इज Na+, HCl स्प्लिट कर जाएगा H+ एंड Cl-. सो अब रीअरेंजमेंट हो रहा है, इट विल फॉर्म अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट विच इज NaCl, एंड हाइड्रोजन आयंस कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस. Right, children? So this is how we can understand things and start applying. More you apply, more you will gain confidence, more you will become experienced in addressing things, and you are good to go for appearing in exams. Now let us move towards the next type of chemical property. Next chemical property of acids, that is acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Metal hydrogen carbonates को हम बायकार्बोनेट्स भी बोलते हैं. What do we call it? हम इसे बायकार्बोनेट्स भी बोलते हैं. राइट चिल्ड्रन? सो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है. बट जो इसके प्रोडक्ट्स होता है वो हमेशा सेम होते हैं, चाहे एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, चाहे एसिड बायकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे. राइट, देयर इज अ रीजन. अब इस रीजन को समझो. ये रीजन भी आपको किस में समझ में आएगा, डिसएसोसिएशन में समझ में आएगा. अब क्या हो रहा है, अब ये आपके पास क्या है, ये एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम मेटल है, एंड कार्बोनेट ऑफ सोडियम इज मेटल कार्बोनेट. सो ये स्प्लिट करेगा तो ये Na+CO3 2- बनाएगा. राइट, और HCl कैसे स्प्लिट करेगा, H+Cl-. राइट चिल्ड्रन, Na+ रीअरेंजमेंट हो रहा है, Na+Cl- विल गिव यू अ सॉल्ट NaCl. एंड मैंने आपको चैप्टर 1 में ये समझा दिया है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शंस के वीडियो में जाके समझेंगे तो उनको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी. जब भी आपके पास H+ और CO3 कार्बोनेट आयंस फॉर्म होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू विल ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. तो सोचने की नीड ही नहीं है, याद करने की नीड ही नहीं है, बेसिक्स याद रखो, एप्लीकेशन अपने आप आता चला जाएगा. राइट, सो सोडियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, Na+CO3 2-, HCl क्या कर रहा है, H+Cl-. तो उसने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा इवॉल्व होगी किससे, H+ और CO3 2-. अब कार्बोनेट है, कार्बोनेट जब भी रीअरेंज करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा ही करेगा, बट उसके ऑक्सीजन को यूज करके हाइड्रोजन आयंस क्या बना लेंगे, साथ में वाटर बना लेंगे. अब आप इस बात को समझो. अब बायकार्बोनेट भी सेम प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, बायकार्बोनेट भी सॉल्ट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर दे रहा है. अब ऐसा क्यों होता है बच्चा, ये समझना बहुत जरूरी है. वी हैव Na+ and we have HCO3-. ठीक है, अब बायकार्बोनेट ऐसे टूटता है. सो एंड दिस इज अगेन H+ एंड Cl-. रीअरेंजमेंट होगा तो NaCl बनेगा. अब HCO3- एंड H+,
ये भी क्या है, सेम एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये भी क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे और साथ में वाटर फॉर्म करेंगे. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्केलेटल इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस एंड देन अप्लाई इट. सो इसमें कोई भी मेटल कार्बोनेट हो सकता है, इसमें कोई भी एसिड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक्स you will be able to cater any sort of question. So my preference as a teacher will always be to teach my students for life, not just to pass a single exam. So I try my level best to make you people understand कि चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, so that you should get the answer of every how and why. So Here comes अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, तो टेस्ट समझना बहुत जरूरी है. ये टेस्ट हमने चैप्टर 1 में भी समझा है, बट हम इसके अब दोनों एस्पेक्ट समझेंगे, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन रिएक्ट विद लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ये लाइम वाटर को कैसे बना देता है, मिल्की बना देता है. अब लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, Ca2+OH-. और कार्बन डाइऑक्साइड जब आयनाइज करेगी तो वो हमेशा कार्बोनेट आयन बनाती है. सो रीअरेंजमेंट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट. Ca2+CO3 2-, इट विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, विच फॉर्म्स अ सॉलिड PPT. सो इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू turn colorless solution of lime water into milky solution, white color solution, and that milkiness appears. अब बच्चे ये याद रखते हैं. अब अगर आपसे अप्लाइड पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई मिल्कीनेस क्यों आ रही है, व्हाट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दैट मिल्कीनेस. सो मिल्कीनेस किस वजह से आ रही है, मिल्कीनेस इज कमिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स व्हाइट इन कलर. तो वो मिल्कीनेस किस वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है. अब रह क्या गया, हाइड्रोक्साइड आयंस रह गए. सो हाइड्रोक्साइड आयंस हमेशा क्या बनाते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं, राइट. सो दिस इज प्रेसिपिटेट. तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है. तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट अलग रहेगा और वाटर अलग रहेगा. अब आप क्या कर रहे हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे थे लाइम वाटर में से, आपने देखा कि जो लाइम वाटर है इट टर्न्स मिल्की. अब वो मिल्की हो भी गया, बट धीरे धीरे अभी भी आपने you haven't stopped yourself, you're continuously passing carbon dioxide through that milky solution as well. So what has been noticed, that milkiness disappears. अब मिल्कीनेस चली गई, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, गो बैक टू चैप्टर 1, रिकॉल द कलर चेंज. कलर चेंज इंडिकेट्स दैट सम केमिकल चेंज हैज हैपेंड एंड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज सम न्यू प्रोडक्ट हैज फॉर्म. जैसे यहाँ पे हुआ था, लाइम वाटर कैसा है, कलरलेस है, राइट. और अब वो कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है. अब वो व्हाइट क्यों दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट. सो color change indicates something new has formed. So here in the first reaction calcium carbonate is formed. अभी भी हम क्या कर रहे हैं, इस solution में से, right, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में से क्या पास करवा रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे हैं. सो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर पास करवा रहे हो तो आप देख रहे हो कि मिल्कीनेस डिसअपियर हो रही है और ये सॉल्यूशन फिर से कैसा हो जा रहा है, कलरलेस हो जा रहा है, राइट. अब ये जो कलरलेस हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, अब ये कलरलेस क्यों हो रहा है सॉल्यूशन, बिकॉज समथिंग न्यू हैज फॉर्म. सो जब कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो न्यू सब्सटेंस बना दे रहा है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर एंड कलरलेस. तो प्रेसिपिटेट जो था वो और कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से डिसॉल्व हो गया. क्यों, क्योंकि अब वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, व्हाट इट हैज बीन फॉर्म, इट हैज बिकम कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कलरलेस है और जो वाटर में सोल्यूबल भी होता है. सो वो मिल्कीनेस भी क्या हो गई, डिसअपियर हो गई. तो ये बहुत सारे बच्चे ये तो याद रखते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट बहुत सारे बच्चे ये मिस कर जाते हैं. इफ यू पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल द मिल्कीनेस कम्स, यस द मिल्कीनेस विल कम इन बिटवीन, बट ग्रेजुअली दैट मिल्कीनेस डिसअपियर्स ऑल्सो. अब वो मिल्कीनेस क्यों डिसअपियर हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन गया है, दैट इज कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कलर क्या है, कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है और ये सोल्यूबल भी है. सो प्रेसिपिटेट हैज ऑल्सो dissolved, right? Due to, because the substance has changed. Earlier it was calcium carbonate, which is insoluble in water, and calcium hydrogen carbonate bicarbonate is soluble in water. So with this we have understood the test to verify whether the gas evolving is carbon dioxide or not. Now moving ahead towards the next property of acids, that acids react with bases. Acids base के साथ react कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, salt और water बना रहे हैं. अब ऐसा जो reaction होता है, ऐसे reaction को हम neutralization reaction बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इस reaction में water बनता है और water एक neutral substance है. इस वजह से this is because we call this reaction neutralization reaction. So whenever acid reacts with a base, it forms a corresponding salt and water, children. So here we have sodium hydroxide, split कर दो भाई, split कर दो Na plus, let me do it here, right? Na plus OH minus, and this will be H plus Cl minus. Now I bet my students can easily do the rearrangement and form the compounds on their own. Rearrangement will take place, so Na will go to Cl minus, oppositely charged ions forms the bonding, and cation forms the bonding with anion, so it will form a corresponding salt, that is sodium chloride, and commonly known as common salt, right? The table salt. And the water is also formed. अब water क्यों है? You know the logic behind. हमारे पास हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? हमेशा वाटर फॉर्म करते हैं, राइट? और वाटर फॉर्म होने की वजह से इस रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शंस को हमेशा क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर. Water being neutral in nature, so such kind of reactions are categorized as neutralization reaction. So with this, let's move to the next one. The next property of acid, that acids react with metal oxide to form salt and water. अब acids क्या कर रहे हैं? metal oxide के साथ react करके salt और water. क्या ये भी एक neutralization reaction होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि metal oxides भी क्या होते हैं? bases होते हैं, right? They are basic in nature. So कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, यहाँ पे आप कलर चेंज भी देखोगे, राइट? एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो. सो पिछला छोड़ना नहीं है और अगले के साथ कनेक्ट करते जाना है. ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, जिससे आप सारी चीजें क्लब करके समझ पाए, राइट? सो हियर मेटल ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद एन एसिड. अब इसको फटाफट से इसके आयंस में स्प्लिट कर दो. Cu2 plus O2 minus, right? If you have H plus Cl minus, so what it will form? The rearrangement will take place and it is going to form copper chloride. Cu2 plus Cl minus, crossover of valency will take place, so copper chloride CuCl2 will form. And H plus and O2 minus, इन दोनों, जब भी ऑक्सीजन आयन किसी भी फॉर्म में या हाइड्रोजन आयन, इन दोनों के कोई भी फॉर्म ऑफ आयन के कॉम्बिनेशन होते हैं तो हमेशा क्या फॉर्म होता है? वाटर फॉर्म होता है. अब आप एक बात यहाँ पे और समझेंगे, यहाँ पे लिखा है एक्वस और यहाँ पे लिखा है लिक्विड. सो व्हाट इज द डिफरेंस? एक्वस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना, तो उसको हम एक्वस बोलते हैं. और वाटर का जो फिजिकल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होता है रूम टेम्परेचर में, दैट इज लिक्विड. सो एल हियर स्टैंड्स फॉर लिक्विड. सो दिस इज really important to understand. Sometimes I get some queries in my physical sessions, physical classes, that ma'am, what is the difference between AQ and L? So L stands for liquid, कि उसका physical state जो room temperature पर है वो liquid ही है. और उस एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो क्या बनाता है? व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स एक्वस सॉल्यूशंस. सो विद दिस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ acids. Now moving on to the next one. So with this property, what are we learning? So here acids react with bases. We have learned the two properties in which the acids are reacting with bases to form the corresponding salt and water. Now अगर आप यहाँ समझ रहे हैं, अब this is an application.
कैन वी यूज दिस रिएक्शन टू क्योर आर एसिडिटी? क्या हम ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं एसिड की टू रिलीव आर एसिडिटी प्रॉब्लम? यस, एसिडिटी इज यूजुअली कॉज ड्यू टू टू मच ऑफ ओवर ईटिंग, बिकॉज हमें पता है कि हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, एंड टू मच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक कॉजेज एसिडिटी। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें बेस यूज करना पड़ेगा। सो वी विल गो फॉर द किचन रेमेडी। सो you all know that your mamas are having baking soda in the kitchen. Baking soda is chemically known as sodium hydrogen carbonate. अभी हमने पढ़ा था, right? हमने रिएक्शन पढ़ा था एसिड का किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। बट मेटल कार्बोनेट तो अब यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि बेकिंग सोडा आपको लेना है, समथिंग विच यू कैन कंज्यूम। सो बेकिंग सोडा का पेस्ट प्रिपेयर करेंगे एंड दैट विल हेल्प टू, सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा विल हेल्प as to relieve from acidity. Why? Because जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक कॉमन सॉल्ट बनाएगा जो न्यूट्रल है, वाटर बनाएगा विच इज ऑल्सो न्यूट्रल, एंड साथ ही साथ कार्बोनेट है। भाई जब कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवॉल्व होगी ही होगी। सो दिस विल हेल्प अस। अब जितनी भी एसिडिटी थी, अब HCl रहा, अब प्रोडक्ट साइड पे देखो HCl तो है ही नहीं, तो वो जो एसिडिटी वाला प्रॉब्लम था वो इससे सॉर्ट हो जाता है। सो केमिकल रिएक्शंस आर नॉट लिमिटेड टू योर केमिस्ट्री लैब्स और योर केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ। आप उसको कितना अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, दैट मेक्स सेंस, राइट? दैट विल हेल्प यू टू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, राइट? सो व्हेनेवर somebody is suffering from acidity, we can give a solution of baking soda, and you must be knowing आपके सबके पास घर पे डाइजीन का बॉटल रहता है, एनर्जेसिक, these are the brands which claims that they are going to relieve from acidity. अब ऐसा स्पेशल क्या है उसमें? They are having the major salt they are having into their suspension is मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज एक वीक बेस है। जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कंज्यूम नहीं कर सकते वैसे ही हम स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस है, और सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो यूज टू क्योर एसिडिटी। नाउ लेट्स मूव अहेड towards the next property, that is acids reacting with metal hydroxides. Acids क्या कर रहे हैं? Acids metal hydroxides के साथ react करते हैं। अब ये भी क्या है? ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो जहां पर भी एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है वो हमेशा वाटर बना रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट मोस्ट कॉमन एंटासिड। एंटासिड मतलब जो एसिड्स के अगेंस्ट काम करे, एंटी एसिड्स। Antacid word come from anti-acids. So we need something which should be anti-acid, neutralize its effect. So bases are commonly used to neutralize the effect of acids. अब ये reaction भी आप 10th class के students आराम से कर पाएंगे अगर आप dissociation का concept समझ गए हैं। So that is Mg2 plus OH minus, and this is H plus Cl minus. So Mg2 plus Cl minus will give you MgCl2. H plus and OH minus will always forms the water. ये क्या बनाएगा? ये water बनाएगा. So ये I hope this reaction is very much clear to all of you. Now moving ahead towards the next one. This is the last property of acids, children, which talks about the corrosive nature of acids. So acids are mineral acids are highly corrosive, right? Because they produce lot of ions, which brings lot of endothermic reactions. And that is the reason behind corrosive nature of acids. So जो mineral acids होते हैं वो बहुत severe burns, जितने acid attacks हम सुनते हैं, right? Highly insane. ये सब acid attacks, ये जो आपके culprits होते हैं, what do they use? They use these mineral acids to burn. So one should not. So these are producing severe burns. ये material जैसे कि cloth हुआ, wood हुआ, metal हुआ, stones तक destroy कर देते हैं. You must be knowing the tarnishing over the Taj Mahal. That is because of the sulfurous acid and the nitric acid. तो जो paleness आ गई है वो किसकी वजह से? Acid rain की वजह से है. So slowly and gradually it destroys the material. So that is why acids are never advised to store in
मेटल कंटेनर्स। एसिड्स को कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता कि वो मेटल कंटेनर्स में हम स्टोर करें। सो वेयर डू वी नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आप मेटल में कर नहीं सकते, वुड में कर नहीं सकते, स्टोन रिलेटेड भी नहीं कर सकते, तो वी द ओनली सब्सटेंस विद विच एसिड्स डू नॉट रिएक्ट इज ग्लास और द सिरेमिक मटेरियल। सो वी शुड ऑलवेज स्टोर एसिड्स। आप अपनी केमिस्ट्री लैब्स में भी देखेंगे जाके, तो जो एसिड बॉटल्स रखे रहते हैं, those acid bottles are stored or kept in glass containers because acids do not react with these two materials, right? So which help us to store the acids. Now we'll understand what do all acids have in common. तो अभी तक तो हमें काफी कुछ क्लियर हो चुका हुआ है, जितने भी एसिड्स हैं इनमें कॉमन क्या है। अब आप ये समझेंगे बेटा, एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयंस इन कॉमन। सो एसिड जब भी डिसोशिएट करेगा, मींस आयनाइज करेगा, जब भी वो स्प्लिट करेगा आयंस में ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, इट विल ऑलवेज ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो HCl गिव्स H+ एंड Cl-। अब फर्दर क्या होता है, जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस अपने आप को अटैच कर लेते हैं पोलर वाटर मॉलिक्यूल से, और क्या फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। क्या फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद मोर एग्जांपल्स कि हमारे जितने भी एसिड है, HCl अभी हमने पढ़ा, इवन एसिटिक एसिड विच इज डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड इज द विनेगर, राइट। तो जब आप एसिटिक एसिड को स्प्लिट करते हो तो CH3COO-, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन, एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन। तो कैन यू सी दिस स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस, इसमें भी फॉर्म हो रहा है। जब आपका डिसोसिएशन एसिटिक एसिड में हो रहा है तो इसमें भी फॉर्म हो रहा है। नाइट्रिक एसिड जब आयोनाइज हो रहा है तो H+ इसमें भी फॉर्म हो रहा है, राइट। H+ NO3-, H2SO4 स्प्लिट करेगा तो इट विल ऑल्सो फॉर्म H+ SO4 2-। So with this we have understood what are acids, what are the two major types of acids, organic acids or mineral acids. We have also understood concentrated and dilute acids. So अगर हम concentrated acids की बात करते हैं, right, अगर हम concentrated acid की बात करते हैं, so concentrated acid have more amount of hydrogen ion, whereas dilute acids have lesser amount of hydrogen ions. And how to dilute an acid, just a recall, how to dilute an acid, by adding acid to water, water to acid, or adding acid dropwise to water. Yes children, you all are right, adding acid dropwise to water, because little bit amount, when you add it dropwise, small amount of heat will produce and it dissipates into the surrounding, so hence it prevent from an explosion, right. So with this we are finished with the acids.